جناب آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں، عید قرباں اور خوشیوں کا موقع، مسرتوں کا موقع اور ایک دوسرے سے ملنے کا، اور جن لوگوں نے قربانی کی ہے دوسروں تک گوشت پہنچانے کا موقع۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جناب یہ عید شو ہے، عید قرباں کا ہے، تو یہاں پر جناب بوفے لگا ہوا ہوگا، اس میں چانپیں ہوں گی اور رانیں ہوں گی اور نہ جانے کیا۔ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پر ہے نمکو، اور نمکو اس لیے ہے کہ تاکہ آپ پہلا دن ہے یہاں سے نمکو کھا کر جائیں، آپ کی بھوک مزید بڑھے گی، اور پھر مزید بڑھنے کے بعد جب اس کیفیت میں آپ پہنچیں گے کہ آپ گوشت کھانا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ گوشت بہت اچھی طرح کھائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سمیر، ماسٹر سمیر نے، بہت اچھے شناخت ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ رہے، اور جیسا کہ صدیق اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ شادی کے بعد ان کی یہ دوسری قربانی ہے، ان کی آپ کو میں مبارک دوں گا کہ شادی کی بھی مبارک آپ کو، اور آپ کو عید قربان کی بھی مبارکباد۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف قوال نجم الدین سیف الدین قوال کے، جو ماشاءاللہ برادر اصغر ہے نجم بھائی کے، سیف الدین قوال جو کہ بہاؤالدین صاحب قوال، بہت ہی خوبصورت آواز، دنیا قوالی کی انتہائی خوبصورت آواز، ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ فن قوالی کی صدیوں سے جو ہے خدمت کرتا آ رہا ہے۔ تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی میں پیش کروں گا، ظاہر ہے آپ نے بھی گھر جانا ہے اور آپ نے قربانی کا گوشت تناول کرنا ہے، تو اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی تواضع ARYQTV ہمیشہ اہتمام کرتا ہے اور نزاکت کو اور حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، جیسا کہ یہ آپ نیم کو دیکھ رہے ہیں، مٹھائی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے مغیث الدین قوال جو کہ ہمارے سیف الدین بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہاؤالدین صاحب کے یہ بھی جی بالکل، نہیں میں لے کے نہیں جاؤں گا، بالکل آپ بالکل، اور بالکل بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، قاری صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، اور قاری صاحب اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے بڑی کمال بات کہی کہ اس بار ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہے وہ لوگ ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دیں جہاں قربانی نہ ہوئی ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک بہت اچھا ایک میں سمجھتا ہوں عمل ہے، اگر ہم کریں اس کو تو برا بھی نہ مانیں وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب، کہ جناب آپ کے یہاں سے دستی آتی تھی بکرے کی، اس مرتبہ دستی نہیں آئی، تو ہم بھی ایک توقع کر رہے تھے کہ عامر فیاضی صاحب کی جانب سے آنے والے مہمانوں کے لیے بکرے آئیں گے، نہیں آئے، لیکن نیم کو آ گئی ہے الحمدللہ، تو نیم کو میں نے پیش بھی کر دی ہے۔ اچھا، کیا کہیے گا صدیق اسماعیل صاحب نے ایک بات جو تشنہ رہ گئی تھی اور مکمل ہوا چاہتی تھی کہ ہم وقفے پہ چلے گئے، اس کے بعد ہمیں چونکہ مہمانوں نے جوائن کرنا تھا، کیا کہیں؟ ہم ماشاءاللہ آج خوشی محسوس کر رہے ہیں، عید کا دن ہے اور قربانی کر کے فراغت سے ہم یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہو جائیں، کچھ ایسے ہمارے ایک اصلاحی بات بھی ہو جائے، پیغام بھی چلا جائے، ہو جائے کہ ہمارے مہمان برادری میں خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ بیٹی کے سسرال میں وہ جانا ہی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی دور رہتی ہو، حالانکہ وہ خود قربانی کرتے ہیں، پھر رسمی طور پہ وہ بھی ہمیں بھیج رہے ہیں، تو وہ لینے دینے والے کا پورا دن جو ہے نا وہ تقسیم کرنے میں ہی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی کا اصل جو 3 حصے کیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو دیے جائیں، غربا کو دیے جائیں، جن کے یہاں نہیں ہوتی ان کو یہ گوشت اگر پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میں کوئی رسمی بات نہیں کر رہا کہ ڈی فریزر بھر لیے جائیں، فریج بھر لیے جائیں گوشت کے، پھر محرم میں اس کی حلیمیں پک رہی ہیں، تو اب جو آپ کو جو ڈی فریزر اور فریج کا جو بل آئے گا نا، وہ پتہ آپ کی قربانی ہو جائے گی اسی میں۔ اچھا، وہ بھی قربانی، کیا بات، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی دور اندیشی کی بات کی ہے حاجی صاحب نے، اس کو یہ نہ سمجھے معمولی سمجھے کہ جناب حاجی صاحب تو بلوں کے ہم نے تو کنڈا ڈالا ہوا، آپ کو بل کی فکر پڑی گی، ہمارے پاس بڑے طریقے ہیں اس کو گوشت سے حاجی صاحب کی بات سے میں ایک اتفاق کرتا ہوں، بالکل بہترین بات حاجی صاحب نے اس وقت فرمائی ہے۔ ہم عید سے پہلے دوست وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جن دوستوں نے قربانی کرنی ہے ان کے گھر پہ ہم گوشت نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، مجھے آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا،
पता है कि आपसे मुझे कुर्बानी का पूछना है, कैसे कुर्बानी करते हैं। यकीन करें मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ अंदर से कि आप कैसे जानवर को मतलब वो करते होंगे, मतलब मगलूब करते होंगे। नहीं, वो मगलूब पूछना है। करने के लिए नहीं तो नहीं जानवर मैं पूछता हूँ हम अपनी कव्वाली के जरिए इंसान को मगलूब कर लेते हैं। नहीं, तो जब मैं- आप सारे भाई खड़े होते होंगे, जानवर तो कहते हैं खुदा के लिए यार जल्दी मुझे जबा कर दो, मैं तो वैसे ही प्रेशर में आ गया हूँ आपसे। नहीं, वैसे हम लोग बहुत डरते हैं इन चीज़ों से, दूर दूर रहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम दोस्त आपस में इकट्ठे होते तो यही बात आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं कि भाई जिसके घर पे कुर्बानी है उसको गोश्त नहीं भेजेंगे हम, बुरा अच्छा। नहीं मानना प्लीज़। और जिनके घर पे, दोस्तों के घर पे कुर्बानी ये अच्छी नहीं बात, हो रही ये अच्छी उनके बात। पास हम डबल हिस्सा करके भेजें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने आजकल दोस्त वगैरह हमारे जो हमारी ऑफिस की आपकी गैदरिंग तो बड़ी होती है अच्छे दोस्तों की। को वो बात को एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप ऐसा करो, ये रिवायत आम होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ हम लोग जैसे आई साहब ने मेमन बिरादरी की बात की, हर कम्युनिटी में ये मसला है। लड़की व बेटी के ससुराल नहीं जाएगा तो न जाने क्या वो कहेंगे, देखो कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजा तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारी वालदा ने, तुम्हारे घर वालों ने। ये भी हमें ना अपने रवैये तब्दील करने चाहिए और इन चीज़ों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मुमकिन है और हुस्न ज़न रखना चाहिए कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया वो गोश्त जहाँ मुस्तहक है, जहाँ पर ज़रूरी है गोश्त भेजना। ये सोच अगर हो, क्या कहिएगा सैफुद्दीन भाई, आपने जैसा बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार है, जहाँ नहीं होती कुर्बानी वहाँ पर डबल हिस्सा भेजा जाता है। तो कुर्बानी के लिए, जानवर ख़रीदने के लिए, आज तो चूँकि पहला दिन है और हो सकता है कि आपका बकरा इस वक्त बड़ी आवाज़ें लगा रहा होगा घर पे खड़ा हुआ कि आप वहाँ चले गए, मुझे यहाँ छोड़ दिया। कैसे जानवर की ख़रीदारी के लिए कितनी कोशिश होती है? हम लोग तकरीबन 15-16 साल से ना, मैं और ये भाई सारे जाते हैं। बड़े भाई नजम भाई नहीं जाते, नजम भाई नहीं जाते, नजम भाई नहीं जाते क्योंकि उम्र की वजह से भी और फिर वहाँ घूमना जितना पड़ता है इस और वजह फिर से। वो डस्ट वगैरह, जी जी, डस्ट वगैरह के अलावा भी उनको हम नहीं लेके जाते। तो खरीदारी तो जाता मैं हूँ सिर्फ वो पेमेंट के लिए ना, बाकी ये सब ये बाकी जो भी अच्छा। अप डाउन है वो हम लोग करते हैं। अच्छा, बार्गेनिंग आप करते हैं? बिल्कुल हम लोग करते हैं। पेमेंट ये करते हैं? पेमेंट ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहम आदमी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो बस यही और हम है। पांचों भाई मिलके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पांचों भाई बात, बहुत मिलके इत्तेफाक अब से तक। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा जी था। जी 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 बोलिए। रईस भाई, जी जी फरमाइए। मैंने अल्लामा से अभी बात की मैंने कि कोई गाय अगर कट गई, ज़िबा हो गई और उसके पता चला बाद में कि उसका बच्चा उसके पेट में था, तो उसके मुतालिक शरई क्या है वो है? शरीयत मुताहरा ने उस हवाले से रहनुमाई की है कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाए उससे पहले या उसके बाद अगर वो उसके बच्चा उसके पेट में से जिंदा निकलता है हाँ, तो उस बच्चे को सदका किया जाएगा। सदका। हाँ, क्योंकि वो बहुत नन्ना मासूम सा है, ज़िबा करने का फ़ायदा तो कोई मिलेगा नहीं उसे। जी। तो किसी भी गरीब मुस्तहिक को, जो मुस्तहिकीन है उनमें से किसी को वो दिया जा सकता है कि उसको पालने पोसने, जैसा वो चाहे उसके साथ मामला कर लें, ठीक है ना। और अगर वो मुर्दा निकला तो उसको फेंक दिया जाएगा, वो किसी के इस्तेमाल में इस्तेमाल में नहीं रहेगा। अच्छा, एक अर्ज में करूं, जैसे वो डिफ्रीजर वाली बात जी आगे जी साहब जी, कर आप रहे तो थे करें ना, आप तो मुंतज़िर हूं मैं। हाँ, उसमें एक मतलब दारुल इफ्ता में एक साहब आए, कहने लगे कि वो अपने भाई को लेकर आए, कहने लगे कि हजरत मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, हम चाह रहे हैं कि उसके हवाले से आप कुछ रहनुमाई करें। मैंने पूछा भाई क्या ख्वाब देखा? कह रहे मैंने देखा कि भाई ने जो गाय ज़िबा की थी ना वो जन्नत में बगैर टांगों के घूम रही है। ओए ओए ओए, मतलब ये कैसा ख्वाब देख लिया? कह रहा मुझे शक है कि भाई ने डिफ्रीजर में पाए अभी तक छुपा के पाए रखे छुपा हुए के हैं। वाह, वाह, वाह। अच्छा, अल्लामा साहब हमारे साथ, अल्लामा फैसल अजीज़ साहब मौजूद हैं, फैसल अजीज़ बंदगी साहब। आप माशाल्लाह ये जो हमारे टेलीथॉन होता है उसका भी हिस्सा हुआ करते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ सवालात आते हैं और वो उसमें भी ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त लोगों तक पहुँचाना होता है। उसका कोई ऐसा वाक़या है कि जो आपकी याददाश्त में मौजूद हो, मैं चाहता हूँ हमारे शेयर करें? बिल्कुल, एहसास के तहत जो कुर्बानी होती है उसमें तो 100% गोश्त गुरबा में जी, तकसीम कुर्बान होता है। तकसीम है। उसके टेलीथॉन और मुख्तलिफ ममालिक से लोग उसमें बिल्कुल, वो दुनिया ताउन भर करते से। हैं। अभी ईद से पहले जब ये टेलीथॉन हो रहा था तो एक कॉल आई अमेरिका से, अच्छा, एक खातून की, तो अली रज़ा साहब, अली भाई हाँ। वो होस्टिंग कर रहे थे। अली भाई ने पूछा कि अच्छा, उन्होंने मौका दिया कॉलर को बात करने का? उन्होंने ये बहुत कहा बड़ी कि- बात है, बहुत बड़ी बात है। अली भाई ने कहा जी मेरी बहन, ओए ओए ओए, आप बताइए आपकी जानिब से क्या कुर्बान किया क्या जाए? कुर्बान किया जाए? तो वो खातून कहने लगी कि अली भाई मेरी जानिब से 2 गायस कुर्बान करना टू है। गाइस। ओए अच्छा, टू सही है, 2 गाय, ठीक है, वो भी उनके लिहाज से ठीक है, लेकिन 2 guys। गाइस को अगर कुर्बान किया जाएगा तो 2 बंदे अड़क जाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सुमैर भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सुमैर, ये मैं पूछूंगा आपसे कि जाहिर है ये आपकी उम्र है माशाल्लाह,
اس میں بڑی بہت تیزی سے بندہ جانور لانے اس کی خدمت کرنے کے حوالے سے. کبھی ایسا ہوا ہے گھر سے نکلے ہوں اور گھر آنے کے بعد جب پونچھ کھینچی آپ نے دم کھینچی اس کی دم ہاتھ میں آ گئی, وہ الفی سے لگی ہوئی تھی, سینگ پکڑا تو سینگ ہاتھ میں آ گیا وہ بھی الفی سے لگا ہوا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا 32 بکرے کی باہر آ گئی جناب, وہ تو ڈاکٹر سے فٹ کروائی ہوئی تھی, کوئی ایسا ہوا واقعہ؟ نہیں کبھی تو ایسا ہوا نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے بھائی اور کزن اتنے ہیں. اچھا لات پڑی ہے کبھی گائے کی لات پڑی ہے؟ نہیں بڑے بھائی کو پڑی. بڑے بھائی کو پڑی, آپ محروم ہیں بھی اس سے؟ میں بالکل پیچھے رہتا ہوں. انشاءاللہ امید رکھیں, ابھی تو 2 دن باقی مزید. محروم ہے کہ یہ ناخواں ہے, یہ ناخواں اس سعادت سے ان کی محرومی کے لیے کیا کہا جائے؟ بالکل, بس یہ کہ ماشاءاللہ یہ بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. اور جیسے کہ کل ہمارے گھر پہ ماشاءاللہ قربانی ہے کہ دوسرے دن ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا تو یہ کہ آپ نے جس طرح پہلے دن کہیں کیا وہ دوسرا والا کام تو نہیں کرتے؟ نہیں وہ ابو کرتے ہیں. ابو کرتے ہیں یعنی کہ اچھا خیر بات ہے. اور دعا وہ جو پڑھنی ہوتی ہے وہ وہاں پر میں شامل ہوتا ہوں. تو بس یہ کہ ماشاءاللہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. اور پہلے 3-4 سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ ہر رشتہ داروں کو بھیج رہے تھے, لیکن پھر جب ایک سمجھ آئی کہ ظاہر بات ہے جن کے ہوئی بھی ہے تو انہیں ہم کیوں دیں. تو ابھی یہ کہ دوستوں یاروں کے جو جن کی قربانی ہوتی تو انہیں نہیں دیتے, لیکن 1 ہفتے کے بعد ان کی دعوت بہترین سے بہترین ہم کر دیتے ہیں. کہ جیسے باربیکیو ہو جاتا ہے کہ چلیں بھی مل جل کر, تو اس طرح سارے دوستوں کو بلا کر یہ اہتمام کرتے ہیں. اور جو ضرورت مند ہیں تو وہاں تک یہ ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات. اچھا مغیث الدین بھائی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایمانداری سے بتائیے گا, کبھی کوشش کر کے سب نے خود سے قربانی کی جناب آج گائے ذبح بھی کریں گے, کھال بھی اتاریں گے, بوٹیاں بھی بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم, ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا کیونکہ اس بارے میں اتنا ایکسپیرینس ہے نہیں. اب بغیر ایکسپیرینس کے ہم لوگ اتنے لوگ حلال بغیر کرنے کے جائیں گے تو کر سر رہے ہیں, آپ بھی کر لیں ایک مرتبہ. الٹا سیدھا کچھ ہو گیا تو پھر وہ قربانی تو گئی نا کام سے. ارے اس نے تو کٹنا ہی ہے نا, تو الٹا سیدھا کیا ہو گیا؟ تو گلے سے ہی آپ دم تو نہیں کاٹیں گے, گلا تو کٹ گیا, اس کے بعد آپ کچھ بھی گلا کاٹنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا کہ گلے سے ہی کاٹیں گے نا, آپ دم سے تو نہیں کاٹیں گے. وہ جلد سے جلد وہ اپنے, اب ہم گلا کاٹنے میں ہی لگے ہوئے ہیں, اب وہ گلا کاٹ نہیں رہا. اب وہ تبلا تو ہے نہیں کہ سیٹ ہوتے ہوتے ہوگا, تو گلا ایک ہی دفعہ کٹنا ہے. نہیں اس کام میں, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار قصائیوں کی مدد کری ہے پہلے, تو جیسے کہ ان سے گر نہیں رہی تو دم پکڑ لی, اب وہ رسی باندھ رہے ہیں تو اس کے آگے کا مہرا پکڑ لیا. سینگ لگا کبھی آگے؟ سینگ پڑا, ایمانداری سے بتائیے کیا ہے؟ مطلب منڈی میں لگا تھا. ہاں بتائیں نا. منڈی میں ہم لوگ گائے خریدنے کے لیے گئے تو وہ اندھیرا بہت تھا. اچھا. تو ہے نا ادھر لائٹ کا بھی تقریباً میں 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا. تو بھائی لوگ تو چل رہے تھے, تو میرا پیر ہے نا گائے کے پیر پہ لگا, وہ لگا نا تو بیٹھی ہوئی تھی, شاعر اللہ میں سے وہ تو بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ ایک دم تیزی سے کھڑی ہوئی, جو آگے والی تھی نا اس نے لات مار دی ڈر کے مارے. اب آپ کہاں گرے جا کر؟ میں گرا کہیں بھی نہیں, میں سنبھل گیا الحمدللہ, اتنی زور سے نہیں پڑی, لیکن اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ واقعی رئیس بھائی بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے, اور بلا شبہ اس میں حساس رہنا چاہیے. خاص طور پہ جب منڈی میں جانور وغیرہ خریدنے جاتے ہیں نا, تو وہ اتنی تنگ جگہ میں بندے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جانور جو ہے نا وہ صرف ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے یوں کرے ہو, آپ کو صحیح سے دیکھنا بھی بڑا گردن موڑی جو سینگ وینگ, تو وہ مطلب خطرناک معاملہ ہے. یعنی اگر لات بھی لگتی ہے تو وہ فریکچر وغیرہ کی, جانور بھاگ رہے ہیں, رسیاں توڑا کے بھاگ رہے ہیں, اور لوگ بچ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ وہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں, انہوں نے رسی اس نے توڑائی اور فوراً نکلی, بھاگے تیزی. اب جو سامنے آ رہا ہے اس کو مار. اچھا ایک مرحلہ وہ بھی ہوتا ہے, وقفے پر جاتے ہیں, وقفے سے جب لوٹوں گا میں تو ایک اور جانب اشارہ کروں گا کہ جو بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے قربانی کے جانور کے خریدنے کے بعد, اس پر ایک بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جناب, خیر مقدم ہے آپ کا, سب کو عید مبارک میری جانب سے. اور بہت اچھے سوالات ہو رہے ہیں, بہت اچھی فکر. ہم نے یہ دیکھا کہ آج الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں بڑی کمال. اس میں ایک بات یہ بھی میں اپنی شامل کر دوں کہ ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے 1 سے زائد جانور جو ہے قربان کیے جائیں, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لے آئیں جانور اور پھر اپنے ان رشتہ داروں, ان احباب تک یہ جانور پہنچا دیں. جناب آپ نے اس سے تو بانٹنا ہی ہے نا, آپ نے تو قربانی کا کچھ بانٹنا ہے, تاکہ ان کے گھر میں اگر یہ قربانی ہو جائے آپ کی طرف سے ہو جائے گی, لیکن انہیں جو خوشی میسر آئے گی, انہیں جو ان کے بچے جو خوش ہوں گے کہ جناب بچوں کو خوشی ہوتی ہے ہمارے گھر میں جانور ہو, ہمارے گھر میں قربانی ہو, ہمارے گھر میں بکرا ہے, ہمارے گھر میں بڑا جانور ہے. اگر اس طرح سے ہو جائے, چونکہ علماء حضرات فرماتے ہیں آپ نے نیت کر لی, پھر ظاہر ہے جیسے حج پہ ہوتا ہے یا دیگر جہاں آپ حصے لیتے ہیں, اجتماعی قربانی ہوتی ہے, آپ موجود نہیں ہوتے وہاں, آپ کو حصہ مل جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جانور لے آئیں 1 سے زائد, اب جو مغیث بھائی بتا رہے ہیں 25 لاکھ کا ایک صاحب جانور لیا ہے, بھائی 25 لاکھ میں اگر آپ 5 لے آتے
अच्छे जानवर या ज़्यादा ले आते, उन लोगों के घरों पर आप कहते थे कि जनाब ये आपकी लिए हम दे रहे हैं और आप अपने लिए भी रखें और आगे बांट भी दें, तो इससे जो खुशी उनको मैसर होगी, मैं समझता हूँ उसका ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना उसे अल्फाज में बयान कर सकते हैं। क्या कहिएगा भाई साहब? मैं यही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, कि बजाय कि इसके हम गोश्त अपने यहीं काट के हम रिश्तेदारों को भिजवाएं, वो जानवर ही उनके यहाँ क्यों ना भिजवा दिया जाए, है, ताकि हम नियत कर लें कि ये हमारी तरफ से। मसला इसमें ये हो जाएगा कि हाजी साहब के लोग कहेंगे किराए काबा तो बता दी शेख ने ऊँट का, लेकिन किराया कौन दे? तो बात ये कि कसाई के कौन अखराजात बर्दाश्त करेगा? अब ये भी एक सवाल पैदा हो जाएगा, जनाब आपने जानवर तो दे दिया, अब कसाई के अखराजात? सिर्फ जानवर ना भेजें, बल्कि कसाई के भी पैसे उनको दे दें, खाने के भी भेजें। तो वाजिब ही नहीं था, वो जानवर और जानवर का खर्चा, जानवर का चारा, उसके भी खर्चे के पैसे दे दें और कसाई के भी दे दें, ताकि वो भरपूर तरीके से। आज हमारे दिखावा इतना हो गया मुफ्ती साहब, हम एनजीओ को देते हैं, फला एनजीओ को हमने इतने जानवर दे दिए, फला। आप ये रियाकारी या ये दिखावा जो है ना, उससे बेहतर अमल वो है कि जो यहाँ बताया जा रहा है कि आप खामोशी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ट्रस्ट करता है, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट करता है, आपको नहीं मालूम कि कितने लोगों तक गोश्त पहुँचता है, कितने लोगों तक और खालिसतन उन लोगों तक के जो वाक़ईतन मुस्तहक़ हैं। तो इस एतबार से हमें सोचना चाहिए, चूँकि खुशी का दिन है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि कहाँ तक हम इस नेकी में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। मैंने आमिर फयादी से भी ये पूछा, जी जी, क्योंकि ARY कैटल फार्म जी बिल्कुल बहुत है ना, तो मैंने आमिर फयादी से पूछा कि आप क्या किस मकसद के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर में प्रॉफिट जो है ना वो बराए नाम रखते बराए हैं। नाम, बिल्कुल सिर्फ वो जानवर की खिलाई पिलाई, जी हाँ, सिर्फ इसलिए हम करते हैं कि यार लोग मुनासिब दाम में जी बिल्कुल उनको एक अच्छा जानवर मिल जाए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुर्बानी नाम ही इसी का है, इसी का बहुत अच्छी कुर्बानी है कि। और दूसरी एक बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ देखें, अल्लाह के खलील के शहजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि अब्बा आपको जो हुक्म हुआ है आप उसकी तामील आप करें, गुजर करिए, हाय हाय, बस आंखों में पट्टी बांध ले, कहीं आपके दिल में मेरे लिए रहम ना आ जाए। ये क्या था, ये दिल तो बस अब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इन चीज़ों को समझने के लिए ये वक्त हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत जरूरी है ये। भाई साहब बहुत अच्छी बात कही, बहुत देर से आपने देखा नहीं, तवज्जो नहीं की, कारी असदुल हक बहुत खामोश बैठे हैं। क्या पहला दिन है, क्या कोई ऐसा वाकया तो नहीं हो गया मंडी में, यानी आपके साथ कोई टक्कर लग गई हो, सींग लग गया हो, जानवर को गाड़ी से उतारते हुए कोई उसने लात वात पेश कर दी हो आपने? नहीं, इनसे पहले एक सवाल और पूछ लीजिए। रमज़ान में हमारे यहाँ रोज़ाना फजर की अजान के लिए कारी साहब आते थे। अब इनसे पूछना है मुझे कि क्या गाय बकरा कुर्बान करते वक्त आप उसको अजान देते हैं उसके काम? नहीं, अगर वो उस पे अगर कोई ऐसा हुक्म होता तो देता मैं, लेकिन हुक्म यही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। ये मेरे मिजाह है आपसे। मेरा सवाल अपनी जगह, आपने यहाँ मेरा सवाल अपनी जगह है, अब उसका इसी तरह हंसते हुए जवाब देना आपने, सही बिल्कुल। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर खामोश क्यों हैं आप इतने? ईद के दिन तो बंदा वो भी बोलता है जो कभी ना बोले, शायद कलेजी का भी ये चल रहा हो प्रोसेस में, नहीं इसको मिस कर रहे हैं उन डिशों को यार। घर पे लोग खा रहे होंगे, इन्होंने खामखा मुझे 2 घंटे से बिठाया हुआ है। नहीं, ये सदमे में इसलिए है, ये सदमे में इसलिए है, या वाइफ का फोन आ गया हो कि अगर तुम अभी नहीं पहुंचे खैर नहीं है तुम्हारी, घर आके दिखाओ तुम। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बकरा साल भर पाला हो, उसका भी गम हो बकरा आज इनसे जुदा हो चुका उसके हो, फिराक में भी, तो उसके फिराक में भी ये ऐसी तो ऐसी कैफियत तो नहीं है। नहीं, ऐसे कोई कैफियत नहीं है। क्या भाभी की तरफ से कोई प्रेशर है? नहीं है, आपको मालूम है हमारा मिजाज ऐसे नहीं है कि हम आपका नहीं, भाभी का तो पता है ना, किसी के प्रेशर में ऐसा मिजाज नहीं है। अच्छा, गाय के भी बैल के भी प्रेशर में नहीं आता, चापों की उसकी तरह थोड़ा, सिर्फ आप उसको मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं यार। सर घर पे देखो सब लोग लगे हुए, मुझे रईस भाई ने चाय और नीम को भी निमटा दिया,
जबकि मैं भाई आपकी भूख बढ़ा रहे हैं यहाँ से। ये आके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर कर रहे हैं। यहाँ आके मुफ्ती साहब और हमने ये इस बात का तज़किरा जरूर किया क्या? कि छोटी ईद पे वो बूफे वगैरह लगा हुआ था, हालांकि वो इस दफा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस हिकमत अमली के तहत, ताकि आप लोग घर जाए तो शिकम सैर होकर आप इंशाल्लाह उसको आप करें। अच्छा, हमारे अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब मौजूद हैं हमारे यहाँ। ज़ाहिर है स्टाफ है, लोग आते हैं जाते हैं, ज़ाहिर रहते हैं यहाँ पे, वाक़यात भी मुख्तलिफ शेयर किए जाते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है इनका भी एक इंटरेक्शन है सबके साथ, ताल्लुक़ और वाक़यात का तबादला। क्या कहिएगा, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपने सुना या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ देखी? बिल्कुल, हमारे ARY के एक साथी वो कस्साब को लेकर आए और घर के सामने उनका बकरा बंधा हुआ था, बराबर वाले घर का पड़ोसी का उनका बकरा भी बंधा हुआ था। उन्होंने अपना बकरा दिखाया कि ये मेरा बकरा है, इसको ज़िबा करना है। तो कस्साब ने कहा कि आप अंदर जाएं, चाय वाय बनाएं, इतनी देर में मैं करता हूँ। वो अंदर गए चाय के लिए, चाय वगैरह बना के जब आए तो बकरा ज़िबा हो चुका था। और उन्होंने बकरे को ज़िबा होने के बाद गौर से देखा, कहने लगे यार हमारा बकरा इतना बड़ा तो नहीं है। और फिर सामने देखा तो अपना बकरा खड़ा हुआ था और वो पड़ोसियों का बकरा ज़िबा हो चुका था। वाह क्या बात है, क्या बात है, वही वाह। ये हुई ना बात के मतलब बकरा भी ज़िबा हो गया, बकरा जान से गया और कहते खाने वाले को। अल्लामा साहब, आप दो बड़े जिम्मेदार हमारे साथ उलमा बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मैंने अक्सर देखा है कि दसियों बकरे गायें खड़ी हुई हैं और उन्हीं के सामने एक जानवर को ज़िबा किया जाता है, वो जानवर इसको देखते हैं। इस पर क्या आप कहेंगे कि ये जायज़ है या? ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम हर जगह एक तहजीब देता है। जानवर अभी जैसे इब्तिदा में जिक्र हो रहा था कि जानवर के सामने छुरी तेज करना, जानवर के सामने जानवर को ज़िबा करना, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें जो कुर्बानी है ये पूरा एक अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है और उसमें उन तकाज़ों को मलूज़ रखा जाए जो शरई तकाज़े हैं, शरीयत के मुनाफिक। अच्छा, बचपन की शरारतें बड़ी वो होती हैं। एक बार तो ज़ोहेब अशरफी के साथ मैं ईद कुर्बान का एक शो कर रहा था। मैंने कहा यार बचपन का कोई वाक़या बताओ, तो उसने बड़ा अच्छा वाक़या बताया। रईस भाई, मैं छोटा था, बच्चा था और मैं बकरे का बच्चा लेकर जा रहा था। तो बकरे का बच्चा जो था उसकी रस्सी मेरे हाथ में थी, पीछे से कुत्ते का बच्चा आ गया। जब वो पीछे भागा तो आगे आगे मैं, पीछे पीछे बकरे का बच्चा, उसके पीछे कुत्ते का बच्चा। तो मैंने कहा इसमें ख़ास बात क्या है? तो एक साहब हमारे साथ बैठे थे, कहने लगे यार कुत्ते का भी बच्चा, बकरे का भी बच्चा और इंसान का भी बच्चा। तो ये जमा दे। तो ये होता है, मतलब जाहिर है जब वाक़यात शेयर होते हैं तो इस तरीके से सुनने में आती है। अच्छा मुकीम, इसी तरह जो जानवरों की खरीदारी होती है ना, उसके अंदर बड़े दिलचस्प वाक़यात होते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो गलत इस तरह काम करते हैं जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के होते हैं। खासतौर पे बकरों के साथ बड़ी मीनाकारी होती है, दांतों के हवाले से नकली दांत लगा दिए, नकली सींग लगा दिए, आंखों के अंदर भी वो मुख्तलिफ किस्म की, इसी तरह क्या लेंस लगा दिए जाते हैं? नहीं, नकली आंखें भी लग जाती खूबसूरत हैं। लेंस, जी जी, ब्लू आंखों वाला बकरा। नहीं, लेंस तो लगाए जा सकते हैं, इंसानी लेंस तो लगेगा, दांतों के हवाले से खूबसूरत लगेगा हमारे वहाँ लोगों वैसे में। ये बड़ी अच्छी एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको बकरे वालों को। अगर लेंस लगाते जा रहे हो तो निकल भी जाएगा, लेंस लगाते तो बकरा कितना खूबसूरत नजर आएगा। तो वो दांतों के हवाले से कॉन्शियस बहुत होते हैं लोग ना, कि दो दांत का ही लेना है, दो दांत से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी जो है ना वो शरारतें वो करते हैं व्यापारी। तो ऐसे ही एक दोस्त जो है वो बकरा लेकर आ गए और बकरा लाने के बाद उन्होंने जो है वो उसको जब चारा वारा खिलाने की बात आई तो उसने दांतों से वो पकड़ लिए अपने जो लूसन वगैरह खिला रहे थे। तो उनके बच्चे ने जब खींचा ना तो उसके दांत ही बाहर आ गए। तो इस तरह की शरारती व्यापारी लोग जो है व्यापारी लोग तो बड़ा, मतलब जब खरीदारी करें तो बड़े ध्यान से वो उसको देखें, जानवर को सही तरीके से चेक करें। शरीयत वो जो आते हैं ना व्यापारी, बड़े फनकार लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से जानवर को, अपने माजूर जानवर को भी बेच जाते हैं, दंदान साजों की खदमात ली जाती हैं। तो इस एतबार से बहरहाल ये तो बड़ा इंतहाई अहम चीज़ है। जिस तरह सैफुद्दीन भाई ने बताया कि मैं तो सिर्फ कैश पर हूँ, बाकी काम मुगीज़ भाई करते हैं। तो आप देखते हैं सींगों को ऐसे करके, जैसे गाड़ी के हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं, ऐसे कभी सींगों को आपने कोशिश की कि यार असली है या नकली है, ज़रा चेक करें। सींग वाले जानवर तो आज तक हम लेके नहीं आए। पिछली मरतबा एक मरतबा हम लोगों ने गाय ली, तो वो गाय के जब लेके आने के बाद घर में उसको रखा वगैरह, बच्चों ने देखा तो लोग आके देखने लगे, तो लोग कहने लगे इसके सींग कटे हुए। हाँ,
इसके सिंग काटे हुए हैं। काटे हुए हैं। हमने बोला यार ये क्या, अब मुफ्ती साहब के पास गए अपने इलाके में, बोला हजरत ये क्या, बोला नहीं ये तो जायज़ नहीं है, तो इनके सिंग काट दिए इसके जब तक सिंग बड़े नहीं होंगे आप इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो हमने उसको वापस जाके उधर छोड़ के आ गए। अब क्या कर सकते हैं, अब कुर्बानी करनी थी, जाके वो जैसे तैसे जो भी उसके हुआ होने पर दूसरे उठा के लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बानी तो हमने कर ली। अब ये है कि जो ऐब वाले जानवर है ना, वहाँ मंडी में पता नहीं क्या चक्कर है, वो ऐब वाले जानवर पता नहीं कैसे ऐब छुपा लेते हैं कि हमारी नज़रों से बिल्कुल ही वो उजल रहते हैं। यहाँ आके वो उन पर लंग भी आ जाता है, उनके खरोंच भी लगी हुई होती है, उनके कुछ और भी मामला हाँ, वो तो उतारने में और हालांकि हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बहुत फनकार लोग हैं, बड़े फनकार लोग। बहुत फनकार। अच्छा, आपने कैश भी देते हैं, कभी रस्सी छुड़ा के भागा है जानवर आपसे? रस्सी वगैरह पकड़ी हो आपने? बोले गया वो गया, पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे हुआ कभी नहीं हुआ। नहीं कभी नहीं हुआ। अपना जानवर रस्सी तो पकड़ी लोगों नहीं के आपने। देखे। आपने कभी कोशिश ही नहीं की उस पर तसर्रुफ हासिल नहीं, करने? ये हाथ तक नहीं लगाते। मैं हाथ तक नहीं लगा, ये हाथ बात तक नहीं बिल्कुल लगा, है, इतने बिल्कुल। शरीफ आदमी आप जी। नहीं, हाथ भी नहीं लगाया जी नहीं, और कुर्बानी के और लिए गाड़ी जब में वो बैठा रहता हूँ, ये अच्छा। मुझे फोन करते हैं कि भाई इधर आ जाएं इस साइड पे, तो जो भी एरिया में मुझे बताते हैं जाके भाई पेमेंट कर दें। और कटने के बाद भी होटल से पूछता हूँ चेक पक गया है? आ रहा हूँ मैं। पाए कितने दिन बाद पकते हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारी तो दे ये देते रिवाज है कि हम पाए दे दे देते देते। हैं, जी। हम लोग पाए दे देते हैं। पाए दे देते जो हैं। हमारे हम घर लोग में नहीं जो रखते, लोग हम लोग काम आम करते तौर पर ये होता है गोश्त पहले बना लिया जाता जी। है, पाए बाद में नहीं, क्या वो- सब क्या कहेंगे इस हवाले से भी, चूंकि इसकी डिशेस जो होती हैं और माजरत के साथ एक बात जी, जी, कहूँगा जी। कि हमारी हम अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हमारी हयात है, वालिद साहब का इंतकाल हुआ तकरीबन 16-17 साल हो गए। वालदा के हाथ में है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो घर में हमारे गोश्त रखने देती ही नहीं। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के बाद हम लोग बस बिल्कुल गोश्त से महरूम हो जाते हैं। ओए होए। ऐसा ही है। ऐसा करती है हमारी वालदा। इससे अच्छी क्या बात बहुत अच्छी होगी बात है। यार? अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा हम ही लोग है। ढूंढते पूरे शहर में भाई साहब कहाँ ऐसे गोश्त ही मिल रहा है, कहाँ गोश्त मिल रहा है, कहाँ से लेना है, क्या खाना है। ये वालदा को हम हर साल ये बोलते हैं, अम्मी जी 3 हिस्से बनाइए, हाँ हाँ। एक घर में रखिए, एक जो जिनको 2 हिस्से आपको देने इनको दे दें, लेकिन वाह। एक तो घर में रखें। वाह। अब वो 2 हिस्से दे दिए, एक घर में रख दिया, अब दूसरे दिन एक कोई में, आ और गया, एक में भी उसको माशाल्लाह पकड़ा ऐसे दिया। लोग मौजूद हों, तीसरे दिन उस कोई आ एक गया, हिस्से उसको का पकड़ा आप क्या दिया। अंदाजा करेंगे जिस एक हिस्से में माशाल्लाह ये लोग खुश खुराक होते हैं? कव्वाल हज़रात, ऐसा नहीं है? जी, जी, ये, अल्हम्दुलिल्लाह। खाते हैं अपना तो खाते गाते हैं। भी हैं, यानी गाने के लिए खाना जरूरी है। तो कव्वाल हज़रात की तो माशाल्लाह खुराकों का पहलवानों की तरह होती है माशाल्लाह। एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद पूछेंगे कि गोश्त को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। जनाब, आपका खैर मकदम है शान ईद में, और ईद कुर्बान के मौके पर पहला दिन, और पहले दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुगीज़ भाई ने एक बात कर दी थी, मैं चाहता हूँ उसको उलमा हज़रात की मौजूदगी में क्लियर कर दिया जाए। पहला दिन है, कल भी कुर्बानी होनी है, अगले दिन भी कुर्बानी होनी है, तो जहन में लोगों के सवाल ये ज़रूर पैदा होगा कि क्या जिस तरह नक़ाइस से पाक होना चाहिए, जानवर यानी कान कटा ना हो, पाँव में कोई ख़राबी ना हो उसकी, और कोई ऐब ना हो, तो क्या बग़ैर सींग, यार जिसे काट दिए जाते हैं सींग, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसकी बहुत सींग वाले बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते, तो काट दिए जाते हैं, फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाती है? रईस भाई, असल में शरीयत मुताहरा ने जो उसूल बयान किए ना, वो ऐब से पाक होने का बयान किया। तो कुछ कैफियत ऐसी होती हैं कि जानवर का सींग अगर काटा जाए तो उसमें ऐब पैदा नहीं होता, बल्कि और खूबसूरती पैदा हो जाती है और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सींग काटने के हवाले से शरीयत मुताहरा का जो उसूल है ना, वो ये है कि अगर जड़ से उखाड़ दिए जाएँ, हाँ, यानी इतने जड़ से उखाड़े कि अंदर से दिमाग मगज नजर आने होल हो लगे, जाए, यानी कि वो होल हो जाएगा। हाँ। अब वो जानवर में ऐब पैदा हो वो गया, नक्स हो गया है। वो नुक्स हो गया, वो खराबी हो गई, वो ऐब हो गया, उसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता जड़ से उखाड़े नहीं है, बड़े सींग तो उसको काट के छोटा कर दिया है या सर के बराबर कर दिया है, उसको घिस हाँ, दिया ऐसा ही है, है। तो उससे जानवर में ऐब पैदा नहीं होता और उसकी कुर्बानी की जा सकती है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। उसकी कुर्बानी की जाती क्या है। बात। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कह दी, ताकि हमारे लोग एक जी पड़ोसी जी जी सुबह ईद है और रात में, आधी रात में उनका जो वो जानवर था, भाग गया। नहीं भागा नहीं, वो बेचारा बस अल्लाह को प्यारा हो हाय गया। हाय 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 बगैर कुर्बान किए हाय हाय। वो, अब वो परेशान बेचारा के, अब उसकी जाहिर है एक ही उसकी हैसियत थी जितना वो ये कर सकता था। अब लोगों ने उससे पूछा कि अब क्या करेंगे? कहने लगा मैं क्या करूं, मैं तो कुर्बानी की नीयत से लाया था, ये कुर्बान होने से पहले ही ये कुर्बान हो गया है, तो मैं क्या करूं अब इसके लिए? तो शरई तौर पर क्या होता है इसका?
نہیں اگر وہ جانور مر گیا ہے تو وہ تو ویسے ہی مردار ہو گیا, استعمال میں تو لا نہیں سکتے اسے. لیکن وہ شخص جو قربانی کے لیے جانور لے کر آیا تھا, اگر وہ صاحب استطاعت ہے, پیسے ہیں اس کے پاس, تو دوسرا جانور خرید لے. اگر نہیں خرید سکتا تو کوئی مظاہرہ اس کی طرف سے قربانی ہو گئی. نہیں, قربانی نہیں ہوئی. قربانی تو اسی وقت ہوگی نیت کہ تو جب اس وہ کی تھی نا. عید کی نماز کے بعد نیت کا ثواب مل گیا, نیت کا ثواب. لیکن قربانی تو اسی وقت ادا ہوگی جب عید کی نماز کے بعد جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے. قربانی تو اسی وقت. اچھا, ہمارے قاری صاحب سے سوال کیا تھا بھائی صاحب نے. قاری صاحب ماشاءاللہ پورا مہینہ فجر کی اذان آپ نے کہی ہے یہاں پر رمضان المبارک میں, اس کے بعد بھی کسی مسجد میں موقع ملا کہیں, یا صرف اگلے رمضان میں انشاءاللہ کیو ٹی وی پر؟ نہیں, وہ گائے بگائے وہ تو جب مسجد ہو یا کہیں جماعت کا ٹائم ہو رہا ہو تو اذان جب کہا جاتا ہے دینے کے لیے تو دیتے ہیں. ایسی کوئی اچھا, اس میں کوئی آپ کے خاص ردم ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اس کا ٹائمنگ آپ کی, اور بہت اچھا ماشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بڑا عبور ہے اذان بڑی کے. خوبصورت اذان پڑھتے ہیں. اتنی خوبصورت شخصیت میں کہ صرف آواز میں ردم, یعنی اذان میں ردم نہیں ہے, شخصیت میں بھی نعت میں بھی ردم ہے اور گفتگو میں بھی ردم. دیکھیں آپ, میں بھی ردم ہے. بس بڑی نپی تولی وہ ردم میں, نہ یہ اوپر جائیں گے نہ یہ نیچے جائیں گے. یہ موقع ہی نہیں دیتے نا کسی کو کہ کوئی اور سوال کر دے, چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادب ہے, بادب بھی ہیں اور ردم میں گفتگو ماشاءاللہ. بڑے ریزرو بھی ہیں اس معاملے میں. ویسے ہمارے بڑے بے تکلف دوستوں میں, لیکن ظاہر ہے آف ایئر ہی ہو سکتا ہے وہ میں سب ان کچھ. کو بہت آن چھوٹی ایئر تو ہو عمر نہیں سے سکتا. میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ بہت ان کا طریقہ کار ماشاءاللہ بہت مہذب ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. کیا پیغام دیجیے گا علامہ صاحب؟ اب چونکہ ظاہر ہے پہلا دن ہے, کل بھی قربانی, اس کے اگلے دن بھی قربانی, اور ویسے تو مسلمان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ ہونا ہی چاہیے. بطور خاص عید الاضحیٰ کے ان 3 ایام میں کس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارا؟ عید الاضحیٰ کے ان ایام میں قربانی کا فریضہ انجام دیں, واجب قربانی ادا کریں, ساتھ میں اس قربانی کے گوشت کو جتنا ممکن ہو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو سال بھر اس نعمت سے محروم رہتے ہیں, اور صرف جانور کے حلقوم پر چھری پھیر کر اسے ذبح نہ کیا جائے, بلکہ اپنی خواہشات نفس کو ذبح کیا جائے, اپنے اندر کے بغض, کینے, حسد کو ذبح کیا جائے, محبتوں کو قربان چڑھائے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کیا کہیے گا سیف الدین بھائی اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو؟ ظاہر ہے آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور ایک آپ والد صاحب کا آپ کا کیا طریقہ کار تھا قربانی کے حوالے سے؟ ظاہر ہے وہ لیڈ کرتے تھے, آپ لوگوں نے ان سے سیکھا, ان کے شاگرد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں آپ ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمارے چاچا الحمدللہ, ہمارے تایا بھی ساتھ ہی ہوتے تھے. تایا ہمارے ذرا دور رہتے تھے, اورنگی ٹاؤن میں رہتے, ان کی اولاد کوئی نہیں تھی نا, تو وہ سب ہمارے چاچا, تایا اور ہم یہ لوگ مل کے ہی کرتے تھے. مگر لے کے والد ہی آتے تھے اس دور میں بھی نا, چاچا ساتھ جاتے تھے, اور قربانی ہمارے گھر پہ ہی ہوتی تھی کیونکہ تایا ہمارے اورنگی ٹاؤن میں رہتے تھے. تو طریقہ کار یہی ہے شو مارکیٹ پہ. شو مارکیٹ پہ, اور الحمدللہ ہم پانچوں بھی وہیں رہ رہے ہیں اور وہیں کرتے ہیں. حالانکہ نجم بھائی, احتشام, انہوں نے اپنے الگ الگ گھر لے لیے ہیں, مگر سارے معاملات ہم وہیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ہی کرتے ہیں, اور کھانا اب تک ساتھ ہے ہماری خاندان کی روایت. اچھا ماشاءاللہ, الحمدللہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کھانا ساتھ کھاتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ سے لے کے ابھی تک ہماری خاندان کی روایت ہے کہ عید کی نماز ہوتی تھی تو خواجہ نظام الدین کی درگاہ پہ پھر قوالی ہوتی تھی. قوالی چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, اور اس کے بعد یہاں پاکستان آنے کے بعد بھی ہماری روایت یہ قائم ہی رہی الحمدللہ. اب بھی عید کی نماز پڑھ کے ہم لوگ ادھر جاتے ہیں اپنے خانقاہ تاجیہ, ہاں بالکل, وہاں پہ قوالی ہوتی ہے. قبرستان. جی, وہاں پہ نماز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد قوالی ہوتی ہے. قوالی کے بعد عید الفطر ہے تو پھر جیسے شیر خورما وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ تو قربانی ہوتی ہے وہاں. واہ, تو الحمدللہ یہ روایت ہماری صدیوں سے ابھی تک ہے. اور جہاں تک پچھلے آپ نے قوال حضرات جو بھی تھے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے مناتے ہیں, خوراک کے حوالے سے میں نے کیا تھا, کیا کھاتے آپ ہیں لوگ, کیونکہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, حیدرآباد دکن کی جو ہماری روایت ہے کہ کچھ ہو نہ ہو, کھٹا سالن, مرچوں کا سالن ہو, بگھارے بیگن. اچھا, عید والے دن بغیر گوشت کے عید والے دن بھی گوشت تو لازمی ہے, گوشت تو لازمی, کچھ بھی ہو, کباب ہو یا پھر قورمہ ہو یا بریانی ہو, لیکن عید ہماری بغیر کھٹے سالن اور بغارے بیگن کے نہیں ہوتی. اچھا اچھا اچھا, یہ لازمی. بغارے بیگن اور مرچوں کا سالن, جی ٹھیک ہے. تو یہ پہلے دن ہوتا ہے, کھٹا سالن ہوتا ہے تینوں دن. ہم تو پہلے دن تو یہاں بزی ہیں, دوسرے دن اور تیسرے دن وہ موقع ہے کا کھٹا سالن. کھٹا سالن, یہ دیکھیں بڑا کمال, تاکہ ہضم بھی ہو جائے. پورا اہتمام کر کے بیٹھے ہیں کہ بکرا پورا کھا جائیں گے, اوپر کھٹا سالن کھائے گے, جناب وہ تو ہضم ہو گیا. اب کل کے لیے پھر تیار آپ آج عید والا میں آپ کے لیے لے کے لیتا ہوا آتا. نہیں لیکن اب چلیں گے نا ساتھ.
चले, इंशाल्लाह आपके साथ ही चलेंगे तो फिर आप बिल्कुल, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे कि किस तरह का अंदाज होता है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा अल्लामा साहब, आप भी माशाल्लाह, उलमा हजरात भी हमने देखा है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन माशाल्लाह खुश खुराक होते हैं। जितनी हमारी उम्र गुजरी है इसमें दीनी माहौल में माशाल्लाह हमने देखा है कि माशाल्लाह जहाँ वो इल्म दीन के हवाले से, खुराक से क्या मतलब? खुश खुराक से मतलब अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, और ये क्या तो बाज़ोक आदमी की निशानी है कि वो जी अच्छा हाँ, खाना जी पसंद हाँ। करते हैं। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपने हमारे कवाल भाइयों के हवाले से इरशाद फरमाया कि जोर लगता है, हाँ, ताकत हाँ। लगती है, हाँ। तो उलमा का भी जाहिर सी बात है खिताब है या दीगर जो मसरूफियात ताकत है, उसके लगती है। एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी सर्व होती है। ऑल्दो फिजिकल एनर्जी ना भी हो, लेकिन दिमागी तौर पे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितना अच्छी खुराक होगी उतनी अच्छी सेहत होगी, और जितनी अच्छी सेहत होगी यकीन उतना अच्छा काम हो सकेगा। अच्छा, यानी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए खाना अच्छा बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी में अच्छा ऑयल ना डालें तो गाड़ी कैसे चलेगी आपकी? लेकिन सूफिया ने तो फाका कशी भी की है, तो क्या सूफिया तो फिर उसको सूफिया किधर- होते हैं ना, वो तो सूफिया तो फिर सूफिया अहले तसव्वुफ है, उनकी तो बात ही कुछ और है। फना हुए जब अल्लाह उनको मका अकबर, वो मिली है ना तो रईस क्या भाई। तमूतु क़ब्ल अन तमूतु है उनकी तो शान। रईस भाई बेशक, वो बेशक। फना हुए जब ही तो बका मिली है। बगा मिली है। सही है। तो ये कैफियत है, और बिल्कुल अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। अल्लाह ने इरशाद भी फरमाया कुलू वशरबू, खाओ वला और तुसरिफू। पियो, वला तुसरिफू, वला लेकिन इसराफ तुसरिफू। नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ने जितनी कैपेसिटी दी है, जितनी नेमतें अता फरमाई, उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हों और उसकी नेमतों पे शुक्र अदा करते वाह, हैं। वाह, वाह। अल्लाह उसमें और फरावानी और बरकतें अता फरमाएगा। वाह माशाल्लाह। और कारी असदुल हक माशाल्लाह, इनके साथ हमारा खाना पीना चलता रहता है मुख्तलिफ, पूरे साल में कहीं ना कहीं हम ज़रूर बैठते हैं। इस मरतबा बकरीद पर आपने कोई ख़ास चीज़ दूसरे तीसरे दिन बनवाई हो तो भाई को याद रखिएगा अपने, और इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी आपके घर पर, क्योंकि ज़ाहिर है आपने कोई ख़ास एहतमाम तो किया ही होगा इस हवाले नहीं से। है वैसे तो उसूलन आपको ये कहना चाहिए था कि मैं छोटा नहीं, भाई मैं- हूं, तो मैं बड़ा आप मेरे भाई, छोटे आप अभी चले मेरे लेकिन साथ, आपने अभी मुझसे मेरे कहा साथ है चले, तो मैं आपको हाजिर हूं, कोई मसला नहीं। बेहतरीन किस्म की चाय पिलाऊंगा। ईद पे भी चाहे खाना तो आप खा चुके होंगे। नहीं, जो होगा हाजिर है आपके लिए, आपके लिए जो होगा हाजिर है। अच्छा आई साहब के घर हम जब माशाल्लाह तो गाजर के देसी घी का जो गाजर का हलवा तो घर का बना हुआ, अल्लाह अकबर। गोश्त तो पता नहीं कैसे बनवाते हैं, हमें तो कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ ईद वगैरह। क्या ई साहब इस हवाले आप से? आइए कल जरूर हमारे यहाँ। और मैं एक बात बताऊं आपको कि हम ठीक है, कुर्बानी का गोश्त है, बरकत भी है उसमें, बरकत भी है। लेकिन फिर बाद में आपको पता है ईद के बाद डॉक्टर काफ़ी दिनों तक बहुत बिजी रहते हैं, हाँ, जो खा बहुत बिसियार खोरी की वजह से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। है ना? तो मतलब कि खाएं ज़रूर, और ये सुन्नत है, कुर्बानी का गोश्त हाँ। खाना सुन्नत है, लेकिन एक लिमिट में खाएं। और हमारे वालिद साहब का ये तरीका था कि कुर्बानी का जो गोश्त बनता था, सालन वगैरह बनता था, उसमें वो लौकी ज़रूर डाल दिया। वाह 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 वाह। इससे ये बताते थे कि इसकी बरकत भी है, हाँ, नबी बरकत भी। पाक सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और इसके हाजिम भी जो है ये। मुज़िर असरात जो होते हैं वो भी इससे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये लौकी डाल के सालन बनाया जाए तो ये एक बहुत अच्छा है। और फी ज़माना हाँ। फी हालात हमें इस दफ़ा बहुत संभल कर चलना बहुत होगा, बहुत संभल कर चलना होगा। हमसे नीचे वालों का हमें बहुत ख्याल बहुत रखना ख्याल होगा, बेशक। हमसे जो ऊपर वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हाँ, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस वक्त हम बड़े बहरान की बहरान की कैफियत में कैफियत से हैं। निकल रहे हैं। सही। तो अल्लाह तो ईद का दिन है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हालात फिर से हमारे आमीन, लिए हो आमीन, जाए, आमीन, आमीन। लेकिन फ़िलहाल हमें हालात को देखते हुए बहुत संभल कर चलना बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत संभल। अच्छा सुमेर, बड़े खामोश बैठे हैं आप, क्या आपकी अभी तो माशाल्लाह नई नई शादी हुई है, प्रेशर में हैं घर की तरफ से, ये कि यार ईद का दिन है, मुझे रईस भाई ने यहाँ बुला लिया, आमिर भाई का ज़ाहिर हुक्म है, आमिर फयाजी साहब का, कोई प्रेशर है, कोई ऐसा अभी तो नया नया मामला है, इस वक्त भी अगर आप प्रेशर में आ गए तो पूरी ज़िंदगी आगे किस तरह गुजरेगी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, और ये तो मैं तो आपके खुशी लहजे की से बात पता चल रहा है। और खुशी खुशी से आप देखें ना, तैयारी कर कर मुझे यहाँ भेजा गया है। आपको बड़े तैयार करके भेजा जी है? जी बिल्कुल। अच्छा, कि इस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह जाना है आपने? बिल्कुल, एक यार भाई, एक पूरी ज़िंदगी और यहाँ पूरी ज़िंदगी बसर करनी। और देखो ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर, अच्छी अच्छी बातें करना। जी जी, हाँ, ऐसे कहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब बड़ी खुशी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजर रही है, और आप लोग की दुआओं से अल्लाह मज़ीद आगे खुशियाँ दिखाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम इस ज़ाहिर है शान ईद है, और ईद के दिन जो है ईदगाह माँ गरीबा
कुएं तो वो जो कलाम है हम इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे. हमारे दोनों अहबाब सैफुद्दीन कव्वाल और मुग़िसुद्दीन कव्वाल जो हैं माशाल्लाह मौजूद हैं, तो इनसे इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब जो हैं चूँकि मौजूद हैं, मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा आप तमाम की तशरीफ़ आवरी का. मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, कारी असदुल हक साहब और जनाब मुग़ीज़ भाई और सैफुद्दीन भाई, सुमैर साहब, मास्टर सुमैर और अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब. मैं चूँकि मेरे साथी नहीं बल्कि मेरे रहनुमा मेज़बान हैं सिद्दीक़ इस्माइल साहब. रहनुमा इसलिए कि इनको देखते हुए, इनको देखते देखते हमने नातख़्वानी के सफ़र में कदम रखा और अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे. ऐसे लोगों की कदर करें आप कि अल्लाह ने हमें ऐसे लोग अता फरमाए हैं कि जिनका दुनिया में एक नाम है, एहतराम है. आप यकीन जानें इनके साथ जब आप कभी आप देखें वो अगर कोई वीडियो, जब आप किसी एयरपोर्ट पे ये होते हैं तो वहाँ पर लोग चले आते हैं दस्तबोसी के लिए कि अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब तशरीफ़ लाएँ. तो सिद्दीक़ भाई क्या कहिएगा पैगाम की सूरत में, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को ईद के मौके पर. बस मैं सबसे पहले तो ARYQ TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हम सबको मिल बैठने का मौका मिलता है और हम थोड़ी सी मिजाहिया भी बात कर लेते हैं, लेकिन हमारा असल मकसद जो है लोगों तक पहुँच जाता है. वाह. कि कुर्बानी के क्या मसाइल हैं, क्या इसके बरकतें हैं, तो ये हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुंचता है और हम अवामुन्नास से, हमारे देखने वालों से हम दरख्वास्त करेंगे कि हम सबके हक़ में दुआए खैर भी फरमाएं और मुल्क के हक़ में भी दुआए खैर फरमाएं. बहुत आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. आप तशरीफ़ लाएँ, सलामत रखे, खुश रखे और आप हमारे लिए सरमाए की हैसियत रखते हैं. तमाम अहबाब की आमद का बहुत शुक्रिया. चूँकि पहला दिन था और पहले दिन कोई भी अपने घर से नहीं निकलता क्योंकि घर में ही इतनी रौनक होती है, इतनी गहमा गहमी होती है, कुर्बानी का मौका होता है, ज़ाहिर है बच्चे खुश होते हैं सब. लेकिन इन सब का मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहला दिन हमें दिया. पहले दिन के बहुत ही अहम लम्हात आप सब ने हमें इनायत फरमाया. आपकी आमद का बहुत शुक्रिया. और जाते जाते मैं चाहता हूँ आज की इस शान ईद का इख्तिताम जो है उस कलाम पर हो कि जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आप लोग पेश किया करते हैं. और ईद के मौके पर ईदगाह माँ गरीबा हुए, तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए. खुशियाँ तकसीम करें, गोश्त तकसीम करें, ईसार का जज्बा ज़ाहिर करें, अपने मुसलमान बहन भाइयों को याद रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें. ARY नेटवर्क और इसकी पूरी टीम को मेरी जानिब से ईद मुबारक और ARY नेटवर्क और पूरी टीम की जानिब से आप सबको, अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक हो. अल्लाह हाफ़िज़. अपनी तो वही ईद है जिस वक्त के हमदम चेहरा नजर आ जाए, लबे बाम तुम्हारा ईद गाहे माँ गरीबा कुए तो ईद गाहे माँ गरीबा कुए तो दीदन रूए तो इन बेसाते ईद दीदन रूए तो सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम ए हिलाले माँ हमें अब रूए तो ए हिलाले माँ हमें अब रूए तो या निज़ामुद्दीन महबूबे इला या निज़ामुद्दीन महबूबे इला जुमला महबूबा गुलामे रूह तो जुमला महबूबा या
یا علاؤالدین صابر کلیری جملہ ترکان جہاں ہندو ہے تو جملہ ترکان جہاں ہندو ہے تو مقطع پیش کر رہا ہوں چند می پرسی کے خسرو را کے دوست چند می پرسی کے خسرو را کے دوست غمزے تو چشم تو اب روئے تو غمزے تو چشم تو اب روئے تو عید گاہ ہے